જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા બ્લોગમાં. કેમ છો? આશા કરું છું કે મજામાં રહેશો. તો મિત્રો સવાર વિડીયોની શરૂઆત કરી દીધી છે વડનગર, રહીએ છીએ ત્યાંથી. તો બસ શંકર ભગવાનની આરતી દર્શન સવારે થઈ ગયો હોય તો આપણે જવું છે દર્શન કરવા. અને આજે છે પેપર બીજું, આપણો દિવસ ત્રીજો. તો કોઈને ચલો મિત્રો હવે મળીએ થોડા સમય પછી. વાગી ગયા છે ને બધા હવે જમવા જઈ રહ્યા. હા તો લિફ્ટ આવું તો રાહે નહીં અરે મેન્યુમાં આજે ખાવાનું મેન્યુમાં આજે ગુલાબ જાંબુ છે. થોડી વાર પછી એટલે આલા દાડા નહીં હમણાં. તો ચલો મેન્યુમાં જમવાનું જોઈ શકો છો. 3 મીની સબ્જી, રોટલી અને દાળ ભાત છે. આવી ગયા. પછી કારણ કે પછી જવાનું છે પેપર લખવા માટે, સમય છે. તો ચલો હવે જમીન આવી ગયા. પણ હવે તો જવાનું નથી એટલે પરીક્ષા લખવા જવાનું છે. તો ચલો મિત્રો જોઈએ થોડા સમય પછી. પેપર પૂરું થઈ ગયું છે ને આવી ગયા છે બધા રૂમમાં. બસ પલટી પર આવ્યો તો ફૂલ એકદમ કેમ કે ભાઈ એકદમ વરસાદ. શૈલેષભાઈ વરસાદ એકદમ જોરદાર આવ્યો છે. નામ કહી દો અમે. ચલો પછી ફરી એકવાર વાતાવરણ વરસાદ જેવું થઈ ગયું છે. જોઈ શકો વાદળ એકદમ ભરપૂર આવી ગયા છે એવું લાગે. ટૂંક સમય વરસાદ થાય. આપણે તો કોઈ હતા નહીં. હવે પેપર પતી ગયું બસ રૂમમાં બેસીને વાંચવાનું છે. ફરી વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. જોઈ શકો છો તો વડનગરમાં બૂમ પડાવેલો છે અને આ બાદ તો વાદળ એટલા આવ્યા છે ને એવું લાગે આજ તો બહુ આવશે. આજ તો અહીંથી ભમીને પીવું આના ઉપર જતો રહ્યો કેવું છે. તો કોઈ નહીં ચલો મિત્રો બધા ચા નાસ્તો કરવા માટે બહાર. તો બસ વરસાદ પણ હજી ચાલુ છે. હવે લાઈટ શો જોવા માટે કાલે ગયા હતા તે તળાવે જઈ રહ્યા છે. મહારાજ ઓમદાસ હેલો બ્રો, તારા જઈ રહ્યા છે કીર્તિ તોરણ મંદિર. નથી જવાના? કીર્તિ તોરણ આ સમયમાં બધું મળતું, કપડાં નથી મળતા. હેલો ગાઈસ, હવે ચલ પડે જો લઈ લે કે સभी लोग. आई गया है ફરવા નીકળી ગયા છે એમ કે. જો અમારા મહેન્દ્રભાઈ તો ફોટો ક્લિક કરાવે. હેલો તો શર્મિષ્ઠા તળાવે આવી ગયા બધા. તો આજે અહીંયા લાઇટ શો થવાનો છે જોરદાર. મિત્રો તળાવ જોઈ શકો છો એકદમ ઘેરું લાગે છે. તો ચલો મિત્રો હવે આપથી રામ ફમવાનું છે, ઓટો મારવાનું છે. થોડા સમય પછી લાઈવ લાઈટ શો આજે દેખાડીએ તમને. પેલા જોકિંગ થઈ રહ્યું છે જોઈ. તો ફરીને મિત્રો આમથી આમ આવવાનું છે લાઈટ શો જોવા. કમળ આપ આવું એટલે ઘણા ઉજેલા હું તો મિત્રો આ છે તો હજુ તો અડધે આવ્યા છે. હજુ અડધું જવાનું છે બાકી. તો કોઈ નહીં ચલો ધીમે ધીમે નીકળીએ. તો આખું રાઉન્ડ મારીને આવી ગયા. હવે લાઈટ શો જોશે.
એટલે મસ્જિદ છે થઈ મસ્જિદ છે લે આ તો ચલો મિત્રો હવે ડાયરેક્ટ જોઈએ લાઈશું ફાઇનલી આવી ગયા અને લાઈટ શો જોઈ શકો શરૂ થઈ લાઇટો તો ચાલુ થઈ ગઈ હવે આ પણ લાઈટ શો ફુવારા શો હવે ટૂંક જ એમાં શરૂ થઈ જશે અરે વાહ બે પહેરો ખોટું લાગી મારા લવની ગાડી ઘરે मैं आज बहुत खुश हूँ, आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे पास मुझसे मिलने, मुझे देखने, मुझसे बात करने आए हैं। आप सोच रहे हैं ना कि मैं हूँ कौन? आप नहीं। अरे मैं आपके ठीक सामने हूँ। मैं हूँ शर्मिष्ठा जी, शर्मिष्ठा जी। मैं बहुत गर्वित हूँ जी। नहीं, अपने ऊपर नहीं, मैं क्या हूँ, एक छोटी सी झील। तमाम नदियों, झरनों, 3 सागरों और अनेकानेक झीलों, सरोवरों, तालाबों वाले मेरे देश में तो कहीं कश्मीर की बुलंद लेक है मीठे पानी का सबसे बड़ा सर। अरे आटले फुवारा आवे कश्मीर की मानस पर झील है जो सबसे गहरी है। पश्चिम में राजस्थान की सांबर सरोवर झील अगर भारत की सबसे बड़ी की झील है जिसके पानी से नमक बनाया जाता है, वहीं पूर्व में उड़ीसा की चिल्का झील खारे पानी का ऐसा जलाशय है जो समुद्र से मिला होने के कारण मीठा और नमकीन दोनों स्वाद लिए हैं। दक्षिण में सबसे लंबा केरल का वेम्बनाड सरोवर जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इन सब प्राकृतिक झीलों के अलावा नैसर्गिक जलाशयों को अलग अलग युगों में लोगों ने संवर्धित किया है और कई पूरी तरह कृत्रिम झीलों का निर्माण भी किया है। पंजाब का गोविंद सागर, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर, हैदराबाद का हुसैन सागर और अपने गुजरात का ही सरदार सरोवर। भारत के सबसे पवित्र पावन पूजनीय सरोवरों में मेरा भी नाम आता है, शर्मिष्ठा तालाब, जिसके किनारे आज हम आप मौजूद हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के सबसे पुरातन, शाश्वत, अविनाशी, चिरकालिक, नित्य, सार्वकालिक, जीवंत और सनातन नगर सभ्यताओं में से एक अनंत अनादि वडनगर मेरे ही किनारे पर बसा हुआ। वैसे मेरा जन्म तो इस सनातन नगर से भी बहुत पहले का है। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि मेरा उद्गम 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था और संसार के सबसे पुरातन पर्वतों में से एक अरावली पर्वत से आई कपिला धारा के मुझ में मिल जाने के कारण ही लगभग 4,500 वर्षों पूर्व मेरे किनारे उस बस्ती का बसना शुरू हुआ, जिसे हम आज अनर्थ, आनंदपुर, वृद्धनगर और वडनगर जैसे विभिन्न नामों से जानते हैं। आगे चलकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व
सोलंकी शासनकाल में इस प्राकृतिक झील का संवर्धन करके इसे एक सदा नीरा सुंदर प्राणदायी स्थान बना दिया सोलंकी राजघराने ने। भुवनेश्वरी मंदिर, गौरीकुंड और स्वामी नारायण मंदिर आदि यहाँ प्रतिष्ठित और पूजित है। एक सनातन का एक पुरातन बौद्ध विहार और 2 जैन देरासरों के चिन्ह भी यहाँ मिलते हैं। इस अनंत अनादि सनातन नगर ने अपने हजारों सालों के विकास और इतिहास में जाने कितने लकीरों रत्नों को संजो कर रखा है। इस भूमि में समाज सभ्यताएं, 7 संस्कृतियां परत दर परत हमारे सामने अब प्रकट हो चुकी है। इन उद्घाटनों में सबसे अनूठी बात है यहाँ के लोगों की समझदारी। उन्होंने समय समय पर प्राकृतिक चुनौतियों को समझते हुए तरह तरह के अनाज बोए, नगर प्रबंधन की योजनाएं बनाई और हमेशा नए और भिन्न मतों का अपने समाज में स्वागत किया। यहाँ के सबसे पुरातन इतिहास की धरोहरें अंबा घाट और अन्य पुरातात्विक उत्खनन में दिखती है, तो साथ ही बौद्ध घसकोल विहार में, जिसका प्रतीक है यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप। पहली बार भिक्षुणियों के नगर के अंदर बनाने दिया गया वडनगर में महिलाओं के आदर और सुरक्षा का ये एक अनोखा उदाहरण है। इसीलिए जब प्राचीन चीन से ह्यूनसान यहाँ आए तो 1000 बौद्ध विद्यार्थियों और भिक्षुओं वाले वडनगर में बहुत लंबा है। हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है कि जो 2500 साल से 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है। कभी न कभी लोग यहाँ रहे हैं। यहाँ की सहिष्णु संस्कृति का गवाह है हठी वेदु देरासर, जहाँ कभी विस्तृत जैन संप्रदाय पुष्पित पल्लवित था। अपने नगर के पास देरासर को स्थापित होने देना यहाँ के नागरिकों के सौहार्द का उदाहरण है। कहते हैं यहाँ के पुरातन आदिनाथ मंदिर में सबसे पहले नवकार मंत्र उच्चारित किया गया था। वही यहाँ का शैव हाटकेश्वर मंदिर उस सनातन सभ्यता का परिचायक है जो आज तक यहाँ प्रचलित है। इसी का संगी है अम्फेर माता का मंदिर। किंतु वडनगर की विश्व भर में फैली कीर्ति का सबसे उत्तम प्रतीक है यहाँ की उत्कृष्ट शिल्प कलाकार नारियाग ने कीर्ति है। ये सुंदर द्वार आज गुजरात प्रदेश की पहचान और प्रतीक बन चुका है। वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। फिर चाहे यहाँ की ताना रीरी जैसी गायिकाएं या यहाँ से निकले नागर ब्राह्मण या यहाँ का एक ऐसा सबूत जिसने भारत ही नहीं वरन पूरे संसार में अपना और शहर का नाम उजागर किया है और देश दुनिया को प्रगति, शांति, सौहार्द के पथ पर ले जाने का प्रण किया है। आज यहाँ के उत्सव सारा साफ पानी मुझ तक पहुँचाया गया।
प्राचीन किंतु सदा नवीन पुर यानी अनंत अनादि वडनगर की संस्कृति का सबसे पुरातन वर्णन स्कंद। साथ ही गिरनार में मौजूद अशोक के शिलालेख भी इस जगह के सहस्राब्दियों पुराने महत्व को साफ दर्शाते हैं। कभी आनंदपुर के नाम से संसार में विख्यात इस नगर की प्राचीनता का एक और प्रमाण है आनंदपुर राज की पुरानी मृण मोहरें और धातु मुद्रा। यहाँ नगर द्वारों के साथ नगर के चारों ओर कभी मौजूद था एक मजबूत परकोटा, किसी काल में मिट्टी पत्थर, कभी किसी समय कच्ची पक्की ईंटों की ये दीवार और इसकी 7 परतें आज तक इस शाश्वत नगर के अनंत इतिहास की साक्षी है और सैलानियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। कभी आनंदपुर के नाम से प्रसिद्ध ये नगर एक समय दूर और पास के नगरों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग के ऐसे चौराहे पर स्थित था कि यहाँ बनने और यहाँ बिकने वाली तमाम वस्तुएं दूर जाती थी। यहाँ की चीजें मेसोपोटामिया और कदाचित रोम तक भी जाती थी। उस समय की सागर यात्राओं की साक्षी है यहाँ मिलने वाले मिट्टी के वर्तमान और तरह तरह के पत्थर और खड़े। ये स्पष्ट है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्कर्ष काल में धोलावीरा और लोथल जैसे नगरों का समांतर शहर था वडनगर। और क्या पता यहाँ के लोगों का धोलावीरा नगर में आना जाना हो और जल संसाधनों और स्वच्छता शुचिता के प्रबंधन विस्तारण में इन दोनों नगरों ने एक दूसरे से सीखा हो, क्योंकि जल संभरण और प्रबंधन के बारे में यहाँ जलाशयों, कुओं, प्राकृतिक तालाबों, नदी और कपिला नहर पर किया गया काम अद्वितीय है। उसी तरह लोथल जैसे समुद्र पत्तन से भी शायद वडनगर का संबंध रहा, जहां से वडनगर में बनी वस्तुएं दूर देशों तक आती जाती रही। गुजरात के स्वर्ण युग के फाइनल लाइट शो થઈ ગયો પૂરો અને બતાવી ગયા હવે તો મિત્રો આજના બ્લોગમાં પાટીજીન તો મિત્રો આજના બ્લોગમાં આટલો હોય મળીશું કાલે નવા બ્લોગ સાથે તો જય માતાજી બાય બાય મિત્રો।